we will cover all these categories, how to answer the questions for all these categories, and like how to prepare for it. So let's get started from the category 1, which is the conceptual based questions. We'll see. Okay, so it's a very basic question, like very first at the beginner level, and here interviewer wants to understand your basic understanding about the topic, like what is SQL. So you can answer something like that, like SQL stands for structured query language, and it is used to communicate with database. And what are the operations we could do with SQL, such as create table, delete data, update table, and fire some queries, etc. So here you can also give some examples there. For example, create, update, delete, these are some SQL related queries you can use. So simple definition with the example is more than sufficient. You don't need to explain all of it. So just in one simple line answer should be fine. The next question is, what is DBMS again, I believe. Yes, so again the similar thing, what is DBMS? You can answer something like this, which is right on your screen. Okay, it's a software which is used to store, manage, and retrieve data from databases. Like what are operations you can create, and most of the companies are currently using DBMS. Here you can also give the examples such as MySQL or PostgreSQL, or what different database management systems are, Oracle, etc. are available in the system. You can also say most of the reputed companies are using this DBMS softwares, etc. So this should be fine. Definition with examples. The next one is आगे बढ़ते हैं. So या सो अभी वी कैन स्टार्ट विथ एसक्यूएल क्वेश्चंस. ये दो तो काफी बेसिक हो गए, जो कि हर इंटरव्यूअर पूछता ही है. सबसे ओके तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर जॉइंस. ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है, इवन इफ इट एट बिगिनर, इफ इट इज एट फॉर बिगिनर्स या फिर एडवांस लेवल का कोई भी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो तो. सो इसका आंसर करते टाइम अगेन सिंपल वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट आर जॉइंस. सो जॉइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more टेबल्स एंड बेस्ड आउट ऑफ वन कॉमन फील्ड. तो हर एक टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन फील्ड रहेगी, उसके बेस पे यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग जॉइंस. यहाँ पर आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कि अलग अलग जॉइंस अवेलेबल है, इनर जॉइन, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, लाइक दिस. जॉइंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन. या फिर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन एनी वन जॉइन. फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन लेफ्ट जॉइन. सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज लेफ्ट जॉइन. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टेबल्स है, टेबल ए एंड टेबल बी. टेबल ए में 3 कॉलम्स है, टेबल बी में 2 कॉलम्स है, एंड उसमें कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स है. तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट जॉइन दोनों टेबल में से कॉमन डिटेल्स फेच करके लाएगा, और वो लेफ्ट जॉइन है इसलिए लेफ्ट के भी सारे रिकॉर्ड्स भी वो फेच करेगा. सो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज लेफ्ट जॉइन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड इनर जॉइन. यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, बिकॉज बेस हर एक जॉइन का सेम ही है. द थिंग इज छोटा छोटा डिफरेंस है. So don't be confused while answering the joins. Just be clear, just know the concepts and answer these questions, and be firm on your questions, because ये काफी बार होता है, like he'll ask you, interviewer will ask you कि if it is it correct if you are explaining this is a left join or a right join, this kind of things. So it is a very important topics actually, join, to prepare joins. Yeah, so यहाँ पे कुछ example है, like what is difference between left join and inner join, etc. So this is all about joins. Next slide, we can go further. What is schema? Yes, ये भी काफी conceptual और fundamental question है, जो कि पूछा जा सकता है. You can answer something like कि it's a database logical structure, जैसे कि blueprint होती है, वहाँ पे tables क्या है, columns क्या है, table के बीच में क्या relationship है वगैरह, all those things are described. So just एक blueprint है, एक रोड मैप या फिर एक ब्लूप्रिंट है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई है. दैट्स अ सिंपल स्कीमा, और ये स्कीमा हर एक डेटाबेस को अटैच होता है. दीज ऑल अबाउट लाइक स्कीमा. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है कीज. तो क्या क्या अलग अलग कीज होती है एंड हाउ दिस कीज आर एक्चुअली यूज्ड इन टेबल. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, व्हाट इज प्राइमरी की. तो प्राइमरी की इज समथिंग विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल्स इन रिकॉर्ड. हर एक टेबल में मोस्टली प्राइमरी की होती ही है, एंड प्राइमरी कीज शुड नॉट बी अ
null. So बस ये 2 पॉइंट याद रखना, like it is used to uniquely identify the records and it cannot be null. This is enough for primary key basically. देन अगेन प्राइमरी की या फिर कीज पे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट इज कंपोजिट की? देन सो कंपोजिट की मोर देन वन कॉलम्स को यूज करके बनती है. इट इज अगेन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कॉलम. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कंपोजिट की. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज ये 2-3 क्राइटेरियाज या फिर ये 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं. जॉइंस क्या है? जॉइंस प्रिपेयर कर लिया. देन कीज क्या है? कीज प्रिपेयर कर लिया. कीज के बिटवीन के डिफरेंसेस प्रिपेयर कर लिया, एक्सेट्रा. Yeah, again a few questions based on key, like what is unique key? So it is again like set of one or more columns which uniquely identifies the table, but इसमें null values accepted होती है जो कि primary key में नहीं होती है. So it is a very small difference. इसमें भी question पूछा जाता है कि primary key और unique key का difference क्या है. It's almost same. I mean used to uniquely identify the records, but unique key could contain null elements. उसमें null elements रह सकते हैं. इन क्वेश्चंस के बाद में व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली टेक वन एग्जांपल, विल ओपन एन आईडी और वहां पे हम लोग हर एक क्वेरीज रन करके देखेंगे. वी विल सी ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स या फिर व्हाट इज नल एक्सेट्रा. आई एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकली बेसिकली. तो हम लोग क्या करेंगे, आई हैव फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे 2-3 टेबल्स क्रिएट किए हुए. वी विल एक्चुअली फायर द क्वेरीज एंड सी कि हाउ जॉइंस विल वर्क. So let's start with on very first note, like if you are a beginner and if you are giving the interview at a beginner level, how to crack the SQL and DBMS related interview. So there are 3 categories. I'll again explain these 3 categories. So interviewer will ask you questions based upon 3 categories. So first category is the conceptual based questions, where the concepts or fundamentals will be asked. You need to prepare few topics at beginner level, which is the very first one is what is SQL and what is DBMS, the very basic one. And as Sanjay mentioned, what are different popular databases are available. So you can like give some examples such as SQL, there is Oracle available, MySQL available, Postgres SQL is available, Excel, etc. So there are different databases available. You can pick any of the databases. There is there are like little bit of differences, but the whole structure or how you write the SQL queries are almost similar. So you can take any one of it. I would suggest you can start with MySQL because it is free, available like free, and you can practice it. You can directly like install it in your Windows if you are using Windows operating system, laptop or computer, or Linux, anything. So you can start with MySQL, I would suggest, but Oracle or PostgreSDB, anything which you have available, which is also fine. So this is about the databases. To start on a very basic level, you can study few theoretical items. So theoretical items as in it includes what are what is schema. First thing is what is schema. The second thing is what is database. So if you consider the bigger picture level, let's take one example of a Meta or Facebook. So Meta is a big thing. Let's consider Meta as a database, and inside Meta you have different databases. So let's consider Meta as one universe, and inside Meta you have different products available, such as Instagram. We have Instagram. Then another product is WhatsApp. Then another product is for example Facebook. There are multiple products available. So let's consider these are different databases available. Let's go into the Instagram. So Instagram is again one database. Then again inside that Instagram database, you have different tables available. So what could be those different tables? This could be the different features in your database. So for example, you can add posts. So post could be one table. You can post stories. So stories could be one table, reels could be another table, likes or dislikes, or what are saved items are there. You can save the post. This could be another item. Drafts could be another table, and whatever another more features are available, I might not be aware about, but yeah, these are the features. So you could create different tables for each of these features. Then relation between, so whenever you talk about database, so there are 2 types of database. We'll not
go deeper into that. One is a relational database and one is a non-relational database. So relational database is something where structure is defined. Everything is structured, like your columns, your tables, everything is defined. And non-relational database, which is a very messy one. You have some data which is जो कि बिल्कुल messy है, जो कि बिल्कुल structured format में नहीं है. So वो डेटा रहता है वो नॉन रिलेशनल में आता है. लेट्स डिस्कस अबाउट रिलेशनल डेटाबेस फर्स्ट. ये इंस्टा का ही एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करता है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टेबल्स हो गए, एक रील्स का हो गया, एक स्टोरी का हो गया, एक पोस्ट का हो गया. उसमें हम लोगों ने यूजर का आईडी डाल दिया, जो भी आपका इंस्टा का आईडी है. तो एक में आपके रील्स आ गए, दूसरे में उसी आईडी से आपके बाकी सारे पोस्ट आ गए, उसी आईडी से आपकी बाकी सारी स्टोरीज आ गई. तो द थिंग इज ना, इफ यू कंसिडर दिस एग्जांपल, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडिंग हियर. तो टेबल्स तक तो हो गया, उसके बाद आता है कॉलम्स, कि कॉलम्स हम लोगों ने लगा लिए. देन आता है कीज. प्राइमरी की जो होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उस टेबल को. अभी इंस्टाग्राम के 1000 यूजर्स है या फिर 10,000 मिलियंस यूजर्स है. हाउ यू वुड आइडेंटिफाई दोज यूजर्स बेस्ड अपॉन द यूनिक की. So that unique key is basically a primary key. So by giving such examples, you can explain interviewer, you could see a bigger picture and you could see like how exactly these databases are used in real life. तो उसमें कीज आ गई, उसमें कंस्ट्रेंट्स आ गए. कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अगेन कुछ रूल्स होते हैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोल दिया कि मुझे कुछ रील डालना है लेकिन उस पर गाना नहीं डालना है, सो इट इज नॉट अलाउड. सो एडिंग सॉन्ग इज अ मैंडेटरी थिंग. तो हम लोग उस सॉन्ग को कर देंगे नॉट नल. सो इट कुड नॉट बी अ नॉट नल. तो नॉट नल हो गया एक कंस्ट्रेंट. सो ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि रूल्स होते हैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के, वो भी हम लोग डेटाबेस पे डाल सकते हैं. समराइज. सो बेसिकली इफ यू आर अ बिगनर तो आप कैसे कर सकते हैं? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वैदे ने सब एक्सप्लेन किया, आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. यू शुड नो कि एसक्यूएल क्या है और डीबीएमएस क्या है, डेटा हम स्टोर कैसे करते हैं, डेटा के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम डेटा को स्टोर कैसे करते हैं. कुछ टेक्स्ट डेटा होता है, कुछ वीडियो फॉर्म में डेटा होता है, कुछ इमेज फॉर्म में डेटा होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट होता है, राइट. सो उन डेटा के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. टेबल्स क्या होती हैं, हम कैसे टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट. अब हमेशा ये सोच के चलिए कि डेटा इज नॉट लाइक कि आपको 10 लोगों को डेटा रखना है या 1000 लोगों को डेटा रखना है. अगर हम बात करें फेसबुक के पास मिलियंस ऑफ पीपल का डेटा, राइट, तो उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं? मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एक्सेल शीट में देखेंगे. सो अगर एक्सेल शीट में कोई डेटा स्टोर कर रहे होंगे तो 1000 रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लैक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको अगर एक्सेल शीट में मेंटेन करनी है, इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू. सो लाइक दिस, आपको पहले ये पूरी थ्योरी समझनी है कि थोड़ा बहुत डीबीएमएस क्या होता है, क्या क्या थ्योरी है, स्कीमा क्या होता है, जो हम कुछ टॉपिक हमने कवर भी किए हुए हैं स्लाइड में, और थोड़ा बहुत वेदी उनको एक्सप्लेन भी करेंगी. इंटरव्यू भी वही पूछता है बिगिनर लेवल पे थ्योरी. जब आपको एक बार थ्योरी बदल जाएंगी कि डेटा क्या है, स्कीमा क्या है, स्कीमा कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज एसक्यूएल, ये सब चीजें होने के बाद लगभग 30-40% इंटरव्यू आपका ऐसे बिगिनर इसके ऊपर चलता है अगर बिगिनर है. उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एसक्यूएल क्वेरीज. आपको बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज आनी चाहिए. सेलेक्ट वो हम इसको कवर, मतलब इस वेबिनार में हम कवर कर रहे हैं व्हाट आर द बेसिक क्वेरीज, और थोड़ा सा एडवांस लेवल की क्वेरीज, ज्वाइन एंड ऑल. तो ज्वाइन नॉर्मली थ्योरी वाइज पूछा जाता है. वैसे भी आई मीन एज फार एज मैंने जितने इंटरव्यू लिए हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो फॉर द बिगिनर, फॉर द फ्रेशर, हम नॉर्मली ज्वाइंस में थ्योरी ही पूछते हैं. क्वेरी हार्डली हम उससे पूछते हैं. लेकिन अगर आप एक दो क्वेरी समझ लेंगे, मतलब बिगिनर लेवल पे ज्वाइन वगैरह, तो भी थोड़ा अच्छा रहता है कि अगर इंटरव्यू ने पूछ लिया तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल. सो अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वही आपका बेस है. सेकंड इज एसक्यूएल, एक्चुअल एग्जीक्यूशन की आप कैसे कर सकते हैं, उसमें भी बेसिक, नॉट वेरी एडवांस. एंड द थर्ड लेवल अगर आपको एडवांस बनना है तो इज लाइक डेटाबेस डिजाइनिंग. हाउ विल डिजाइन योर डेटाबेस, हाउ विल बी डिफरेंट टेबल्स. जैसे अभी वैदे बता रही थी कि एक मेटा है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं. तो वो एक डीबीए करके एक रोल होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो उसमें काफी एक्सपीरियंस वर्क है, बिकॉज डेटा इज एवरीथिंग. अगर मैं बोलूँ आज की डेट में तो डेटा इज एवरीथिंग. हाउ यू कंट्रोल डेटा, हाउ यू मैनेज डेटा, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप पहले थ्योरी से जाइए, फिर एसक्यूएल से जाइए, और फिर आप डीबीएमएस प्लान कर सकते हैं. आई थिंक हमारा वेबिनार भी इस तरह ही प्लान है. सो अगर आपकी कहीं बीच में क्वेरी होती है, वी कैन टेक योर क्वेरी, राइट वेदी? मे बी yes, so we can continue with that. Yeah, sure. So I'll answer one question which is on chat box first. Kritika, so one DBMS is enough for fresher to learn? Yes, of course, one DBMS is more than enough for a fresher to learn. You can start with one database and
एक्सप्लोर फर्दर. कॉन्सेप्चुअली हर डेटाबेस सेम ही होता है. जैसे आप कंपनी चेंज करते हो, अलग अलग डेटाबेसेस वहां पे यूज होते हैं बेस्ड अपॉन उनका पे क्या है या फिर डिफरेंट फैक्टर्स. बट वन डेटा फॉर टू किक स्टार्ट, बेसिकली वन डेटाबेस इज मोर देन इनफ. यू कैन जस्ट इंस्टॉल वन एंड write queries on it, understand the concepts and practice queries, so that should be enough, more than enough I would say. Another theoretical important part आता है कि indexes क्या है. ये mostly beginner level को पूछते नहीं है. If you go in intermediate or in more level, they will ask you, but you should know like what is index. Basically SQL पे index क्या होता है. So it is very simple. जैसे अपने कोई भी books में या फिर like whatever डिक्शनरी एक्सेट्रा में इंडेक्स होता है, एंड यूजिंग दैट इंडेक्स वी रेफर टू दी पर्टिकुलर पेज. इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट वी क्रिएट, बिकॉज अगर इंस्टाग्राम या फिर ये मेटा का एग्जांपल ले ले, बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत रिकॉर्ड्स है, बहुत यूजर्स है. इफ यू वांट टू क्विकली लाइक सिलेक्ट वन यूजर, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि कुछ भी फास्ट लोड होना चाहिए, यू विल गेट रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. सो दैट्स वेयर दिस इंडेक्सेस कम्स इन पिक्चर. सो अगर इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछ भी लिया बिगिनर लेवल पे, तो आप सिंपली इस तरीके से बता सकते हो कि इट्स अ वेरी सिमिलर, which is at the back of the book, and reference करने के लिए use होता है. And you can give one example such as like why indexes are used for faster retrieval etc. So that should be enough. Second important thing आता है operators. Okay, तो operators क्या होते हैं? Whenever you write SQL queries, तो you can use some operators. तो ऑपरेटर्स के एग्जांपल भी हम लोग प्रैक्टिकली कवर करेंगे. तो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट सम स्पेशल कीवर्ड्स और कैरेक्टर्स जो कि कुछ लाइक जो कि एसक्यूएल क्वेरीज लिखने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बिटवीन, इन और जो वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं. सो ऑपरेटर्स इज लाइक वन ऑफ द पार्ट्स जो पूछा जा सकता है. तो यू कुड लाइक सिंपली से सम डेफिनेशन, नॉट एग्जैक्टली डेफिनेशन, बट व्हाट इज ऑपरेटर्स. इट इज अ कीवर्ड or characters for defining or for performing specific operations, and you can give some examples. So we will cover the in practical session like all these things, like queries using all these things. Okay, what is DBMS we already covered. What is normalization? Okay, ये एक क्वेश्चन है जो कि बिगिनर लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट पे जाते हो तो अब ये लोग पूछेंगे. बिगिनर लेवल पे भी लाइक इट्स गुड टू नो. सो इन सिंपल वर्ड्स, हम लोग टेक्निकल या फिर उसके टाइप्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस मेटा ओनली, लाइक इंस्टाग्राम ओनली. सो व्हाट इफ इंस्टाग्राम का सिर्फ उन्होंने एक ही टेबल बना दिया, एक ही टेबल में 1000 उन्होंने कॉलम्स अपडेट कर दिए कि दिस इज अ यूजर आईडी, इसने इतनी सारी रील्स पोस्ट किए, स्टोरीज डाली है, इतने सारे फंक्शंस है. सो वो एक टेबल मेंटेन करना बहुत बल्कि हो जाता है और उसमें डेटा बहुत डुप्लीकेट आ जाता है. तो नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम लोग इफिशिएंटली टेबल्स और डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, सो दैट डेटा की रिडंडेंसी ना हो और हम लोगों को क्विकली डेटा मिले. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बड़ा टेबल है, इसको आप छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करो, और वो कैसे करना है ये नॉर्मलाइजेशन बताता है. उसकी बहुत सारी टेक्निक्स आती है, वो टेक्निक्स हम लोग वी विल नॉट कवर राइट नाउ फॉर इट, बट लाइक इफ इंटरेस्टेड वी कैन डिस्कस इट फर्दर. But in simple words, normalization is used to like reduce the data redundancy by splitting the columns into multiple, like splitting the large table into multiple columns and multiple databases, etc. A very basic concept. So let's move forward. Yeah, just to add one point, आप कभी भी जो भी आप DBMS के कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो whether it is normalization, whether it is DBMS, जो भी है, whether it is schema, हमेशा ना एक्सेल को अपने दिमाग में रखें. MS एक्सेल पे सबने काम किया हुआ, राइट? उसमें सबकी रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं. तो नॉर्मली अगर हम DBMS की बात करें, जो भी हम यहाँ पे SQL डेटाबेस की बात कर रहे हैं, उस सब में ऐसे आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट? तो हमेशा जो भी आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन या जो भी, आप एक्सेल को रखें कि एक एक्सेल है, अगर सारा डेटा एक एक्सेल में डाला तो इट वुड बी टफ टू फाइंड. तो आप क्या कर सकते हैं, उस एक्सेल का कुछ डेटा डिफरेंट एक्सेल फाइल बना सकते हैं जस्ट टू सेग्रीगेट. तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं. तो हमेशा जब भी आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो थोड़ा एक्सेल को अपने दिमाग में रखें, तो आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. Yeah, right. It's a very good trick actually to find it. Another is acid properties. Yeah, so again ये एक theoretical topic है but काफी important है, जो कि पूछा ही जाता है. So acid properties इसका like full form है
फुल फॉर्म, और वी वुड से इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये चीजें क्या होती है? ऑटोमिसिटी मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली ना ट्रांजैक्शन के टाइम पे यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन, पेमेंट कर रहे हो फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी चीज से, उसमें भी बैकएंड में डेटाबेस ही है, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस ही है। तो ऑटोमिसिटी क्या बोलता है? इधर योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, इट्स कंप्लीट और नॉट कंप्लीट। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा काफी बार इश्यू आता है कि योर ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग, या फिर वो बीच में फेल हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन रिफंड नहीं आता है, सामने वाले को पहुंचते नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑटोमिसिटी। लेकिन इफ यू गो फर्दर इट विल गेट रिजॉल्व। आई मीन whenever you do a transaction it's either complete or non complete, ऐसा बीच में it should not hanging around it between. this properties tells this, मतलब जब भी आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, कीप इन माइंड दैट योर डेटाबेस शुड बी एटॉमिक, शुड लाइक फॉलो दिस ऑटोमिसिटी प्रॉपर्टी। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। सो फॉर एग्जांपल अगेन आप कुछ मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो डेटाबेस में, एंड एक ही डेटाबेस में 1000 लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो डेटाबेस शुड बी कंसिडर, मतलब मुझे एक दिख रहा है, अनदर यूजर को अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कंसिस्टेंट दिखना चाहिए या फिर एक जैसा ही दिखना चाहिए। अनदर थिंग इज आइसोलेशन। सो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ डेटा अपडेट कर रहे हो, एट द सेम टाइम समवन एल्स इज अगेन अपडेटिंग डेटा ऑन सेम टेबल। तो जो भी दो पैरेलल में उसके ये चल रहे हैं ट्रांजैक्शन या फिर पैरेलल ऑपरेशंस चल रहे हैं, इट शुड बी आइसोलेटेड, एक दूसरे से एकदम अलग होने चाहिए और एकदम मतलब स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, सो दैट मल्टीपल यूजर्स कुड यूज सेम टेबल एट सेम टाइम। एंड ड्यूरेबिलिटी इज समथिंग कि आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। सो इधर यू कैन मेक कॉपीज ऑफ योर डेटा या फिर उसका बैकअप लेके रखो, 4-5 सर्वर में उसको इंस्टॉल करके रखो, वट एवर थिंग्स यू विल डू। सो एसिड प्रॉपर्टीज बेसिकली यही बोलती है कि हाउ यू डिजाइन योर डेटाबेस। जब भी आप अपना डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, कीप इन माइंड दैट इट शुड फॉलो दिस 4 प्रॉपर्टीज. So these are the acid properties, which is again a theoretical question, but interviewer could ask. Yeah. We can move further. Okay, SQL queries. Let's start this practically only. So ये ना एक ऑनलाइन टूल है जो मैंने यूज किया है. आई यूज्ड ऑनलाइन टूल बिकॉज मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी चैट पे. अगर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करनी है SQL क्वेरी की एक्सेट्रा, यू कैन डायरेक्टली यूज इट एंड लाइक open it and use it. तो इसके लिए you don't need to install everything on your machine. अगर आपको क्विक एक्सेस के लिए चाहिए, इट्स बेटर इफ यू इंस्टॉल एवरीथिंग बिकॉज लाइक उससे ज्यादा हैंड्स ऑन होता है. बट जस्ट फॉर दिस सेशन या फिर अगर आपको क्विकली कुछ करना है, यू कैन यूज दी ऑनलाइन आईडीज एज वेल. काफी अच्छे आईडीज ऑनलाइन अवेलेबल है. तो इसमें स्टार्ट करते हैं. तो लेट मी स्टार्ट विद सम टेबल्स. आई विल शो यू सम टेबल्स. ये काफी बेसिक क्वेरी है जो यूज करने के लिए यूज की है. आई विल स्टार्ट वन बाय वन. सो फॉर एग्जांपल, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस. दिस इज द सिंटैक्स क्रिएट डेटाबेस अपलिफ्टर्स डेमो फॉर एग्जांपल. इसको हम मेटा जैसा कंसीडर कर सकते हैं या फिर इंस्टा जैसा. एक डेटाबेस बना लिया, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बना लिया. फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बना दिया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये सारे इसमें कॉलम्स है. एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, फुल नेम एक कॉलम है, मैनेजर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सिटी, ये कॉलम्स है. तो इसका ना दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स. ये आपको कहीं भी मिल जाएगा या फिर यू कैन लाइक सी दिस. तो इसमें ना हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स या फिर बाकी चीजें डाली हुई है, जैसे कि प्राइमरी की हो गया. वी आर मेकिंग एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की. दिस सजेस्ट की दिस कॉलम विल यूनिकली आइडेंटिफाई योर होल टेबल. वारकर वगैरह ये सारे इसके डेटा टाइप्स हो गए. नॉट नल ये अगेन एक कंस्टेंट है. तो हम लोगों को क्या चाहिए, जो भी एम्प्लॉय आएगा उसका फुल नेम होगा ही होगा. सो दिस वैल्यू शुड नॉट बी अ नल. सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट अगेन, नॉट नल. Let me quickly run this query actually. Okay, ये टेबल है एंड इसमें ये सारे कॉलम्स है और ये सारे कंस्ट्रेंट्स हम लोगों ने डाले हुए हैं. वी आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स आर नॉट नल. आई मीन इसमें वैल्यूज होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ नल. ये एक टेबल आता है. बाकी अलग अलग बेसिक क्वेरीज होती है जो आपको प्रिपेयर करनी है इंटरव्यू के टाइम पे. डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये क्वेरी हो गई. इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि टेबल क्रिएट करते टाइम व्हाट ऑप्शंस यू कैन गिव, या फिर व्हाट ऑल आर लाइक थिंग्स यू कैन स्पेसिफाई. तो उसमें आप बोल सकते हो कि प्राइमरी की हम लोग दे सकते हैं, की स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि नॉट नल एक कंस्ट्रेंट मैंने स्पेसिफाई कर लिया. डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से डेटा टाइप का डेटा डालना है. अगर अभी देखो मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट चाहिए था, डेट इज अनदर डेटा टाइप, तो मैंने डेट का ये ले लिया.
डेटा टाइप ले लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट टेबल एंड यू कैन एक्सप्लेन. सो इसमें इंटरव्यू को आइडिया आ जाएगा. यू नो अबाउट डेटा टाइप्स, यू नो अबाउट कीज, यू नो अबाउट लाइक कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरी बहुत सिंपल क्वेरी है जो कि सारा डेटा निकाल के लाती है. स्टार इज समथिंग जो सब कुछ शो करता है. अगर आपको दो ही कॉलम चाहिए तो यहाँ पे सिंपली यू कैन गिव एमपी आईडी कॉमा फुल नेम. तो ये आपको दो ही रिकॉर्ड्स शो कर देगा, दो ही कॉलम्स दिखा देगा. वेरी सिंपल क्वेरी. अगेन सिलेक्ट की. अपडेट क्वेरी तब यूज होती है जब यू नीड टू अपडेट सम डेटा इनटू डेटाबेस. फॉर एग्जांपल फुल नेम राम, ये अलग नाम था, मुझे ये राम नाम चेंज करके एबीसी करना है. तो आई विल सिंपली लाइक चेंज दिस क्वेरी. अपडेट करना है कुछ भी डेटाबेस में, अपडेट की क्वेरी. तो ये ना सारी सिंपल क्वेरीज है जो कि यू शुड नो. इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करें. इंसर्ट इनटू क्वेरीज, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, वैल्यूज, और ये सारे उसके वैल्यूज हो गए. सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस टेबल. तो ये सारी बेसिक क्वेरीज आपको प्रिपेयर करनी है. ये मैंने 3-4 डेटाबेसेस बनाए थे. इसमें एक्चुअली हम लोग क्वेरीज रन करके देखते हैं कि इसमें आई विल एक्सप्लेन जॉइंस एंड ऑपरेटर्स, नॉट नल के कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा. वी विल सी एवरीथिंग इनटू दैट. डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वारकर. ओके, कैर एंड वारकर में डिफरेंस इतना होता है, इट्स लाइक कैरेक्टर में यू कैन स्पेसिफाई सिंगल कैरेक्टर. तो कैरेक्टर में आपको फिर लिमिट देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वारकर की जगह कैर ले लिया तो अगेन यू कैन गिव द लिमिट. वारकर मोस्टली यूज होता है क्योंकि वारकर लाइक बड़ी लिस्ट या फिर बड़ी रेंज सपोर्ट करता है. इट विल गिव यू अ बिगर रेंज मोर देन कैरेक्टर. सो दिस इज वेयर वारकर इज यूज्ड मोस्टली. You can use it as a string. I mean, जैसे string होती है, text होता है, so you can just हमने specify किया 255. So you can specify any number here. So here we have specified varchar 255. It means कि 255 characters हो सकते हैं इस string में जो आप store करते हैं. So that's how. So char में थोड़ी restrictions रहती हैं. That's why we use varchar. And right now varchar 2 आ गया है अभी SQL में. So varchar 2 हम ज़्यादा इसको use करते हैं. वो एडवांस वर्जन में आप सीखेंगे तो चेंजेस होते रहते हैं. लाइक कीवर्ड. ओके, लाइक इज अगेन ये ऑपरेटर है. और k% और %k ये क्या करता है. सो फॉर एग्जांपल ओके, हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें इफ यू स्पेसिफाइंग k%, तो ये क्या बोलता है कि द फर्स्ट कैरेक्टर इज k एंड % इज उसके आगे की चीज. सो मैच द थिंग्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम k एंड देयर कुड बी लाइक other characters after k. और % क्या बोलता है कि k could be your last string और उसके पहले के जो भी कैरेक्टर्स है वो उसमें कवर हो जाएंगे. तो ये बस एक क्या बोलते हैं, इट्स अ फॉर्मेट. इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो. आप %k% ऐसे भी लिख सकते हो. उसका मतलब होता है यस उमंग, थैंक्स फॉर दिस. कार्तिक एंड कृष्णा, अगर k% आपने डाल दिया तो ये 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसमें k से स्टार्ट हो रहा है या फिर ये हो रहा है, या फिर %k. कार्तिक इज अगेन वन एग्जांपल जहाँ पे k आपका एंड में भी आ रहा है. सो इट्स अ मैचिंग पैटर्न आई वुड से. स्टार्टिंग फ्रॉम k, % इज समथिंग अगेन इट विल मैच अ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग सामने आती है या फिर पहले आती है. तो इस तरीके से यू कैन लाइक यूज दिस. जो आपने पहले लिखा है k%, इट मींस आपकी कुछ भी कोई भी लेटर है वो k से स्टार्ट होना चाहिए. और जो आपने %k लिखा है, इट मींस आपका कोई भी लेटर हो, इट शुड बी एंड विद k. तो वो ये सर्च करके आपको लाके देगा. सो ओके, तो अगर आपको वो कैरेक्टर्स आपके मैचिंग स्ट्रिंग में यूज करने तो उसका ना फॉर्मेट आता है. रेगुलर एक्सप्रेशन आप जैसे बोलते हो, यू कैन स्किप दोस कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल // यूज करके यू कैन स्किप दोस कैरेक्टर्स एंड यू कैन से कि दीज आर नॉट वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर्स एंड कंसिडर दिस एज अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग. सो इस तरीके से आप अपना मैचिंग पैटर्न या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. Correct me if you want to add anything in that, Umang, Yash, or anyone. Yeah. There's one thing in underscore, it represents one character only, whereas in percentage it represents 0 or more character. So like for the same example, if k underscore is there, then it would mean that we are searching for only a word which has only 2 characters starting with k. Whereas a k% would mean that we want any string which is starting from k and it can be of length 1, 2 or infinite.
So that is one. Okay, let's move forward. ओके, ये ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप बिगिनर का दे रहे हो या फिर अगर आप इंटरमीडिएट या फिर नेक्स्ट लेवल का वगैरह भी दे रहे हो. व्हाट इज हाउ टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल. इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. लेट मी run the table first. So for example, this is our table जहाँ पे we have employee ID, we have project, we have employee की salary, and this is some random let's see variable I have added. Okay, whatever. You can consider these 3 columns for now. So हम लोगों को second highest salary निकालनी है. Second highest salary is what? This is 10,000. Maximum is 12,000. So यहाँ पर क्या चीज आती है ना, you can use sub queries. Sub queries is another important part जो कि हम लोग use करते हैं, जहाँ पर you can use multiple queries nested into one query. So let's understand how this sub query is written and how this query is written. So this is how we write this query. Select employee ID max salary from employee salary table where salary is less than this. तो इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं. जब भी हम लोग सब क्वेरी लेते हैं तब अंदर वाली जो क्वेरी होती है जो वो सबसे पहले रन होती है. तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्वेरी रन होगी. ये क्वेरी क्या कर रही है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सेल. तो मैक्स सैलरी बेसिकली ये एक फंक्शन है MAX जो कि मैक्सिमम सैलरी देगा. तो ये टेबल में से मैक्स सैलरी निकालेगा विच इज 12,000. तो इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा 12,000. तो अगर पूरी क्वेरी देखे तो पूरी क्वेरी फिर बन जाएगी सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर सैलरी इज लेस देन 12,000. तो 12,000 के पहले वाली मैक्सिमम सैलरी आ गई 10,000. सो दिस विल रिटर्न ओनली रो विच इज अ 10,000. So this is how you could find the second highest salary. तो ये क्वेरी हो गई सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए. हाउ कुड यू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी. इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालो या फिर फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालो. अगेन यू कैन यूज सब क्वेरी ओनली हियर. हम लोगों ने सैलरी इक्वल्स टू ले लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेरी लिख ली सब क्वेरी. तो ये सब क्वेरी क्या कर रही है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट रोज नहीं दिखाता है. इट विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज. सो वी आर सिलेक्टिंग डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी टेबल. अगेन ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय क्या करता है, इट विल like keep the order. अभी we are giving order by salary, that means sorted in order, basically sorted. And DESC is descending, so sort the salary in descending order. तो ये descending order में पूरा का पूरा sort कर देगा इतनी query. हम लोगों ने इस पे लिमिट लगा दी. अभी मैंने ये इस तरीके से लिखा है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड n थर्ड हाईएस्ट सैलरी. तो लिख लो n इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब लिमिट 2 सैलरी दिखा लो. 1 इज समथिंग, ये ऑफसेट रहता है, इसका मतलब है शो ओनली सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम. तो ये हमारी एक सब क्वेरी हो गई. ये हम लोगों को सेकंड हाईएस्ट सैलरी दे देगी अगर हम लोगों को nth हाईएस्ट सैलरी दे देगी जो भी वी वांट. तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग कीवर्ड्स यूज किए. वी यूज डिस्टिंक्ट, वी यूज ऑर्डर बाय. इट इज अनदर वन क्लॉज, जैसे कि वेयर क्लॉज होता है. सो ऑर्डर बाय ये एक क्लॉज है. DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, लिमिट, ये भी अलग अलग कीवर्ड्स है जो कि यूज होते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए. अभी इसने 8,000 दे दी विच इज अ थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम दिस टेबल. So this is a very important question जो कि पूछते हैं. You need to answer this using you need to solve this using sub queries basically. तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is sub query and why we use it. So this is one thing. Another is write a SQL query to find the employee ID whose salary lies in range of this and this. Let me open this table first. ओके, रेंज में हम लोगों को कुछ फाइंड करना है. 9,000 to 15,000 के रेंज में किसकी सैलरी आती है, वी नीड टू फाइंड. अगेन सिंपल क्वेरी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सेल वेयर सैलरी इज बिटवीन दिस एंड दिस. यहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेटर्स यूज किए है. क्वाइट सिंपल थिंग. ये क्वेरी हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, सब क्वेरी से भी लिख सकते हैं, बट यूजिंग ऑपरेटर्स इज वन ऑफ द लाइक फास्टेस्ट और इजीएस्ट वेज. तो बिटवीन हम लोगों ने यूज किया, बिटवीन 9,000 एंड 15,000, तो हम लोगों को ये दे देगा. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स. अलग एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फेच कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी एक टेबल हम लोगों ने देख लिया था, फिर मैनेजर सैलरी एक टेबल है. तो इसमें कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी है जो कि मैनेजर्स भी है और उनका रिकॉर्ड मैनेजर सैलरी टेबल में भी है. तो हम लोगों को दो इसमें के लाइक कॉमन रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पर हम लोग जॉइंस भी यूज कर सकते हैं, इज वन ऑफ द वेज. अनदर इज यूजिंग द इन कीवर्ड. अगेन यहाँ पे इन कीवर्ड के साथ ये यूज किया है.
सब क्वेरी यूज किए कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम मैनेजर सैलरी, तो ये मैनेजर सैलरी के सारे एम्प्लॉय आईडीज निकाल लेगा. फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज प्रेजेंट इन मैनेजर सैलरी. तो मैनेजर सैलरी के अंदर वाला जो भी है वो मतलब निकाल के लाएगा. सो एम्प्लॉयज विच आर ऑल्सो मैनेजर्स, उनकी सैलरी इसने निकाल के लाई. ये क्वेरी भी हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लाइक इस तरीके से मेंशन किया, इट कुड बी ऑप्टिमाइज कि वी कैन यूज इन कीवर्ड विथ लाइक सब क्वेरीज इन हियर. सो ये भी एक है, like this is one of the ways. So ये सारे ना टेक्निक्स है हम लोग like if we consider ना using keywords between हो गया, like हो गया, in हो गया, सब queries हो गया, या फिर range हो गया, या फिर order by वगैरह clauses हो गए. If you master this ना, if you know ना कि हाँ ये सारे चीजें available है, and if you know once कि इनको कैसे use करना है. For example 2-3 queries भी आपने कर लिए जैसे कि इसमें की है, then you will master it at beginner level, और आप कौन सी भी queries लिख सकते हो. So it's very simple topic. It's just that you need to understand and you need to practice it. And yeah, so this is one thing. Again ये एम्प्लॉय का ये एग्जांपल है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट records display if it is one present in one table or not in another table. तो यहाँ पर हम लोगों ने join यूज किया है. तो एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय सैलरी ये दो टेबल्स है. मैं पहले ये दो टेबल्स दिखा देती हूँ. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट अ क्वेरी टू फेच एम्प्लॉय नेम्स एंड सैलरी फ्रॉम रिकॉर्ड्स. Display the employee details even if salary records is not present in for this employee. तो यहाँ पे join का concept बताती हूँ. ये join का concept क्या है. Employee details में हमारे पास अभी 3 records है, 1 to 3, 3 to 1 and 4 to 1. ये 3 employees है, इनकी details हो गई. Employee salary में अभी हमारे पास है, अगेन हमारे पास ये तीन ही records है. ओके इसमें चौथा रिकॉर्ड भी हो सकता था. सो कंसीडर हमारे पास 2 टेबल्स है, एक में 3 रिकॉर्ड्स है, एक में 4 रिकॉर्ड्स है. 4 रिकॉर्ड्स, एक में 3 रिकॉर्ड्स है. और फॉर एग्जांपल एक कोई एम्प्लॉय जो कि न्यू जॉइनर है, उसकी सैलरी डिटेल्स अब तक अपडेट ही नहीं हुई है इस टेबल में. तो हम लोगों को वी कैन यूज जॉइंस इन हियर. जॉइंस यहाँ पे लेफ्ट फुल नेम सैलरी ये सारे कॉलम्स निकाल के लाओ. लेफ्ट जॉइन ऑन एम्प्लॉय सेल where you could like apply this left join employee ID and employee cell. So whenever you apply joins, whenever you use joins, you need a common column. तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एक कॉमन कॉलम हो गया, जो कि फॉरेन की भी बोल सकते हैं. सो फॉरेन की क्या होती है, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 टेबल्स थे, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय डिटेल्स. एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की थी, एंड वी आर यूजिंग दिस सेम प्राइमरी की इनटू एम्प्लॉय सैलरी टेबल एज वेल. तो इसमें क्या होता है ना, दिस इज एम्प्लॉय सैलरी टेबल. इसमें हम लोगों ने अगेन एम्प्लॉय आईडी यूज किया है. तो इट जस्ट लिंक 2 टेबल्स बेसिकली. फॉरेन की इज समथिंग व्हिच लिंक्स, व्हिच इज अ लिंक बिटवीन 2 टेबल्स. एंड जब भी हम लोग लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं या फिर कोई भी जॉइन यूज करते हैं, वी नीड अ कॉमन कॉलम. तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे हम लोगों ने कॉमन कॉलम दे दिया. So basically I was saying कि there can be so many fields. आपके पास कई सारे fields हो सकते हैं, name, age and your college and your salary etc. Right? So some field you are saying that it should be you are not making it mandatory. आप जैसे नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, आपका स्टूडेंट का एक या एम्प्लॉय का एक टेबल है, एम्प्लॉय से स्टिक करते हैं, एम्प्लॉय का एक टेबल है, एम्प्लॉय में नेम, एज और उसका कॉलेज और अदर फील्ड्स हैं. तो आप कह रहे हैं कि आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने टेबल में, उसमें अगर कोई कॉलेज अपने स्पेसिफाई करता है कि ओके आई एम फ्रॉम एबीसी कॉलेज, तो आप उसको इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में. ओके फॉर एग्जांपल मैं अपना ऐड करता हूँ उमंग, मेरा नाम, माय एज एंड देन माय कॉलेज नाइट इलाहाबाद एंड सो ऑन, तो आप उसको ऐड कर देते हैं. समटाइम व्हाट हैपन कि आपके पास किसी एक डिफरेंट बंदे का डेटा आता है एंड यू वांट टू ऐड इन योर डेटाबेस. फॉर एग्जांपल वैदई का डेटा आता है और वैदई का कॉलेज आपको पता नहीं चला या फिर वो बताना भूल गई और आपने भी मैंडेटरी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ है, तो आप उसमें एंट्री कर देंगे नेम में वैदई, एज में उनकी जो एज होगी, और कॉलेज आपको पता नहीं है. सो इन दैट केस यू कैन यूज दैट डिफॉल्ट इन योर डीबी, इन योर टेबल, कि अगर जिसका ये वाला नहीं पता चलेगा कि वैल्यूज क्या है, तो डिफॉल्ट में कुछ भी डाल देंगे. तो आप एग्जांपल में डिफॉल्ट में एनए करके डाल सकते हैं या एबीसी कॉलेज करके डाल सकते हैं. तो दिस इज द डिफॉल्ट कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड जस्ट टू ऐड योर डिफॉल्ट वैल्यूज उनके लिए जिनकी वैल्यूज मिली नहीं है. ओके इसमें एक नया टेबल आ गया, एंड एम्प्लॉय सैलरी में ये टेबल नहीं है.
ये रो नहीं है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है बेसिकली। और इफ यू कंसिडर लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, इट विल फेच द कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स। तो अभी हम लोगों ने लेफ्ट जॉइन लगाया था एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय डिटेल्स पे। तो एम्प्लॉय सैलरी में हम लोगों के पास बस 3 रिकॉर्ड्स है, एंड वी आर अप्लाइंग दिस लेफ्ट जॉइन ऑन कॉमन कॉलम, जो कि एम्प्लॉय आईडी हो गया। तो इसमें ये 3 आईडीज है, सैलरी में एंड डिटेल्स में वी हैव 4 आईडीज। तो यस तो जो भी डिटेल्स निकाल के लाएगा लेफ्ट जॉइन, तो वो क्या करेगा, सो अभी अपना एम्प्लॉय डिटेल्स इज अ लेफ्ट कॉलम एंड एम्प्लॉय सैलरी इज अ राइट कॉलम। एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं, देन वी विल इट विल बी मोर क्लियर कि इसने क्या किया। मैं रन दिस क्वेरी बेसिकली फर्स्ट। या तो इसने क्या किया, एम्प्लॉय सैलरी में अपने 4 रिकॉर्ड्स थे, और इसमें 3 रिकॉर्ड्स थे। तो कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से थे, राम, श्याम और सीता फॉर एग्जांपल, ये 3 वाले इसने निकाल के लाए, दीज आर दी कॉमन, और इसका सैलरी वगैरह निकाल के लाया। वी हैव अनदर रिकॉर्ड विच इज इन लेफ्ट टेबल, लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट कॉलम के सारे रोज निकाल के लाता है, एंड जो भी कॉमन रोज राइट कॉलम में होता है वो कॉमन रोज निकाल के लाता है। अभी उसको न्यू कॉलम के लिए कुछ सैलरी नहीं मिली, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग इट एज नल। So this is how left join works, or any join works. It will take like find out the common records from both the tables, और जो भी common records from both table. The first thing is, if it is a left join, it will take all the records from left table और बाकी को null कर देगा। अगर right join है तो सारे के सारे records आएगा और left को null कर देगा। अगर फुल ज्वाइन कर रहे हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आएगा और जिसमें वैल्यूज नहीं है उसको नल कर देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली, बेस्ड अपॉन वन कॉलम कॉमन कॉलम वैल्यूज निकाल के लाएगा, और व्हाटएवर वैल्यूज और व्हाटएवर थिंग्स नल कर देगा। द लाइक जॉइन वर्क्स। सो या वी हैव these different queries available, और भी इसमें काफी सारी queries हम लोग कवर कर सकते हैं। Okay, so for example, join was explaining by Vaidehi. So for example, हमारे पास 2 टेबल हैं, टेबल A एंड टेबल B। टेबल A में 3 फील्ड्स हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। आप उसको कॉलम बोल सकते हैं, मैं बोलता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। और हमारे पास एक और टेबल है B, टेबल B। टेबल बी में 3 कॉलम है, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, राइट। सो बेसिकली जॉइंस हम तभी लगा पाएंगे जब टेबल ए और टेबल बी के बीच में कोई ऐसा कॉलम होगा जो कॉमन होगा, कॉमन इन द सेंस सेम होगा, उसमें डेटा सेम होगा। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है आपका कोई भी आईडी हो सकती है, कोई भी नेम हो सकता है, कॉलेज नेम हो सकता है, लेट्स से कॉलेज नेम। तो जो हमारी टेबल ए थी और टेबल बी थी, उसमें एक कॉलम है, वो दोनों कॉमन है, तो हम उस पर जॉइंस लगा सकते हैं, राइट। सो लेफ्ट जॉइन में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, 4 तरह से जॉइन हम लगाते हैं, लेफ्ट, राइट, इनर और आउटर, राइट, या फुल जॉइन। आउटर इट मींस फुल जॉइन एज वेल। तो अगर हम आउटर जॉइन कर रहे हैं या फुल जॉइन कर रहे हैं, सो इट मींस लाइक वी आर जब जॉइन लगाते हैं तो जो 6 के 6 कॉलम्स है, वो 6 के 6 कॉलम्स आ जाएंगे जॉइन के बाद, और सब में डेटा होगा, लेफ्ट का भी राइट का भी। जब हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं तो कॉलम्स आएंगे बट डेटा लेफ्ट का होगा, और जो बाकी जो राइट के कॉलम्स आएंगे उनमें नल वैल्यूज होती है। सिमिलरली अगर हम राइट जॉइन लगा रहे हैं तो जो राइट टेबल का डेटा होगा वो वहां पे आएगा, और जो लेफ्ट का डेटा होगा वो नल आएगी। मतलब कॉलम्स आ जाते हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 के 6 कॉलम्स आ जाएंगे, बट जो डेटा होगा लेफ्ट में लेफ्ट का डेटा रहेगा, राइट का नल रहेगा। राइट जॉइन में राइट का डेटा रहेगा, लेफ्ट का नल रहेगा। आउटर में सारा डेटा रहेगा। इनर में जो आप एक तरीके से, इनर इज लाइक कि आपको नल वैल्यूज ही नहीं चाहिए, आपको वही फील्ड चाहिए जो आपका कॉमन फील्ड्स है। जो कॉमन फील्ड्स है इनर में केवल वो आएगा। अगर आपने वो डायग्राम भी देखा हो जॉइंस का, तो वो इस तरह सर्किल बनते हैं। तो अगर आप लेफ्ट जॉइन बोलते हो तो आपका इस तरह दिखाता है, राइट जॉइन बोलते हो तो राइट वाला पार्ट होता है, फुल जॉइन या आउटर जॉइन बोलते हैं तो पूरा कंप्लीट रहता है, और इनर जॉइन बोलते हो तो बिल्कुल बहुत छोटा सा रहता है बीच में। यहाँ पे मिस कर गए हम, आपको डायग्राम से अगर दिखाते हैं तो इनर जॉइन इज लाइक जो डेटा कॉमन है केवल वही रिफ्लेक्ट करे। सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर, आउटर, लेफ्ट एंड राइट। Okay, so let's see, whenever you write any join, just keep in mind 2 things. Let me open that example of a join only. Just keep in mind 2 things. First thing is whatever columns you need to select, and what kind of join you need to use, left join, right join, outer join, etc., and on which column you need to apply join. So this is a very basic syntax. Select star or select these tables. From which table,
whatever join, left join on which table. So this is a left table and you are applying join on this table. Then select a common column, yes, specify or consider a common column. So employee ID here is a common column. This is a very basic syntax and basic thing which you need to use while writing a join. So yes, consider these three things and apply joins on it. You will be able to. Yes, so I was saying, consider this basic syntax whenever you are using join. Whenever you are like whatever you need to write with join, ये syntax use कर लेना. Select whatever columns you need to add from this table. ये दो tables हो गया अभी. Left table left join अगर consider करें तो ये left table हो गया, ये right table हो गया. From this table left join on this table. तो यहाँ तक हम लोगों ने join लगा लिया. And the last thing is select a common column. तो हो सकता है उसमें चार common columns हो. तो यू नीड टू वाइजली सिलेक्ट कि कौन से कॉलम पे ज्वाइन लगाना है. तो वो कॉलम के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स द ज्वाइन और द क्वेरी विल फेच. तो लेट्स लाइक कीप इन माइंड दिस सिंटैक्स. दैट्स इट. like replace the values in it and write it. So you'll be able to like write any join related queries using this. And just to add one thing, Sangeeta and all, basically it will come by practice. You just try with 30, 40, 50 queries. I mean, कोई भी एक टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक पे एटलीस्ट 5-10 क्वेरीज आप खुद से लिखोगे, सो यू विल बी मास्टरिंग दैट. और ये मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल प्रैक्टिस इट वन टाइम एंड यू विल रिमेंबर इट एवरी टाइम. You have to recall it. You have to think about it again. For example, आप कभी भी इंटरव्यूज में जा रहे हैं, so it's not like that कि आपने एक बार कर लिया, it will come to you. So you have to practice before going to the interview or before doing something. क्योंकि ज्वाइंस होते हैं थोड़ा से ट्रिकी रहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि व्हाट इज द डेटा, और इंटरव्यूअर कभी कभी फंसाता है चीज़ों में. हम जस्ट टू चेक योर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ब्रशअप करना भी बहुत जरूरी है और थोड़ा रिकॉल करना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे ग्रुप बाय, हैविंग, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं वो हमें पता होते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं या कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं. सो इट विल कम बाय प्रैक्टिस. और कभी भी आप इंटरव्यू पहले जाओ तो थोड़ा सा कुछ चीजें जो आपको लगता है, जो आपको कंफ्यूज करती हैं, उनको आप रिकॉल जरूर करो. तो कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है. इवन वी डू द सेम. हम जब भी इंटरव्यूज देते हैं इवन आफ्टर, तो हम भी थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं. 5-6 दिन का टाइम लेते हैं, खुद से सारे कंसेप्ट्स और जो भी चीजें होती हैं वो रिकॉल करते हैं. सो इट्स नेचुरल. Yeah, over to you, Vaidehi. Yeah, that's correct, Umang. So just I'll give you one trick actually. जब भी आप इंटरव्यू ब्रश अप कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो ये सारी बेसिक क्वेरीज है ना, जिसमें जॉइंस लगे हुए हैं, जिसमें ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, सब क्वेरीज लगे हुए हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली आते हैं, इनको ना कहीं तो भी सेव करके रखो, so that you can like revisit again and practice those things again. तो जब तक आप खुद से क्वेरी फायर नहीं करते हो, you won't learn. So practice it. That's the only thing. Yeah. So yeah, these all are the again queries which we already discussed. So maybe we can move forward all these questions. Selecting maximum highest second highest salary from table, etc. So we already like checked these queries. So maybe you can like move to next slide, Sumang. Yeah, these are again the SQL queries. Like how could use between keyword if you want to find out salary between a range. So select a query and use this between keyword. Between 9,000 and 15,000, it will list all the salaries or details in between. So yeah, the use of between keyword basically this query specifies. The next one. Yeah, so these are basically the examples only which we already like discuss on this like online ID, how to fetch common records between tables. So we can use joins here as well, and we can use in keyword as well. So different ways are there. Null operator, yes, null operator is one of the things. I guess I did not we did not check this query, but null is something we can again check. अगर हमारे पास कुछ column है या फिर if you want to find the things which are null in table, तो simply is null करके we can write a query. Select employee ID salary from table where
प्रोजेक्ट इज नल, तो फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है जिसको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड दैट, सो यू कैन यूज दिस क्वेरी. नल इज अगेन अ कीवर्ड. यूजिंग नल इज नॉट नल यूज करके यू कैन फाइंड आउट द डेटा इन टेबल. सो या, with this constraint, null constraint. So yes, maybe we can move forward. Again, joins. ये सारे joins we already discussed. Yeah, let me take this example. Actually, it's very interesting. So, for example, we checked two categories. We divided all these concepts or database interviews into three categories. First is fundamentals or concepts or a theory. Second one is writing SQL queries, actually queries related questions. And third is a scenario based question where interviewer will ask you to design a database for something. Here basically, so let's take this example only, design a database system for shopping website, for example, Amazon. Before going into this, let's consider this. Whenever interviewer asks you this question, he did not expect an accurate answer here. He just want to see, he or she just want to see how you see the bigger picture, like how you see the problem statement, how you see the bigger picture. Can you spot all the features in it? Can you make a relation between two tables or not? So even if you don't have an accurate answer, just try to see the bigger picture and try to solve this example. So for example, these are some steps you could find. Make a plan in mind and think about all the features. For example, if you want to design a database for a shopping website, then select all the features available. So for example, adding item to cart, adding the quantity, applying some coupons, or adding shipping address, billing address, etc. if it is a COD order. Then adding payment method, credit card, debit card, or UPI or COD, whatever method you are selecting. So consider all these features first. Then consider what are columns you are required in each table. So once you consider these two things, so you have 4 tables ready, you have all the columns ready. Then consider relation between these tables. So for example, you have user ID in one table, and this table is for cart items, another table is for address. Then your user ID will be a foreign key. You need to keep user ID in this table and this table as well to fetch the data. So consider tables, consider columns, consider relation between these columns, put a common column in between, and then try to show like this is a bigger picture and this is how you are will design a database. It's a very raw thing where there are multiple things available. For example, normalization concepts come here. So this problem can also be solved in one single table. So you can create one bigger table shopping website and add everything to it. But again, you need to normalize it. So normalize is again it to split that table into multiple tables. So वैसा ही करना है. छोटे छोटे टेबल्स बनाने, कॉलम्स डिसाइड करने, कॉमन कॉलम डिसाइड करना है, क्या क्या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाने हैं वो डिसाइड करना है. एक बार कॉलम्स और टेबल्स डिसाइड हो गए, go into little deeper level, select think about keys क्या यूज करनी है, प्राइमरी की क्या यूज करनी है, फॉरेन की क्या यूज करनी है, वो हो गया. गो टू नेक्स्ट लेवल, सोचना कि कंस्ट्रेंट्स क्या लगाना है, कि कौन सी वैल्यू मुझे नल नहीं चाहिए, पेमेंट मोड मुझे नल नहीं चाहिए, यूजर शुड पे फॉर द पेमेंट इवन इफ इट इज COD, राइट COD इन दैट. सो उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है. थिंक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा. So these are the things when consider when you answer these scenario based questions. So again, accurate answer is not expected here, but how you see the problem statement, it is something which is important in such type of questions, and it is the best practice to answer these questions basically. So yeah. To conclude this, I would say SQL is something which is the base of all of it. If you are a technical person, and if you are giving a technical or non-technical person, I would say you are giving interview for Java developer, Python developer, database administrator, even a data scientist, data engineer, SQL is something which is it's like a base. Everyone will ask you question on base. It is something which is included in every area. And even if you are giving interviews for some management related things, for example BAs, so they will also ask some basic SQL questions on to BAs too, because data is everything and SQL plays with data.
So if you have the knowledge about SQL, it's a add-on on non-technical roles as well. For example, you are a BI developer, business intelligence, where you are developing some dashboards. There are multiple tools available such as Power BI, Tableau, MicroStrategy, if you heard these names, where different dashboards, etc., people are building. So there also on background to get data, SQL is used. So it is something which is used in technical and non-technical job roles. And it is very important, like to prepare for it and be ready to give the answers, etc. I just want to answer Karthik questions. So Karthik, basically the way you were asking, it's right. इसको exclude करना है, इसको include करना है. That's the right, I mean, good thing. But usually interviewer don't ask like this, because SQL, I mean, is a tool, is a language where we just get the data. We can, I mean, we can do some operations, right? So basically, अगर आप थोड़ा और डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा जानना चाहिए कि किस ऑपरेटर से क्या इफेक्ट पड़ता है. तो यूजुअली हम एसक्यूएल लिख रहे हैं, हम क्वेरी लिखते हैं, इट्स द ब्रिंगिंग द डेटा आउट. बट द एक्चुअल स्किल्स जो एडवांस लेवल पे चाहिए होती है, वो होती है कि आप जो क्वेरी लिख रहे हैं वो कितनी एफिशिएंट है. आपने ऑपरेटर यूज करके, मतलब जैसे वैदई ने दिखाया कि हम इन करके भी यूज कर सकते हैं, हम ज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज द एफिशिएंट वे? बिकॉज व्हेन यू आर फेचिंग डेटा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फेचिंग लैक्स ऑफ डेटा, अगर आप इन करके उसको फास्ट कर रहे हैं, यू आर एफिशिएंट, सो योर क्वेरी इज एफिशिएंट. अगर आप उसको ज्वाइन करके डेटा ला रहे हैं, सो इट मींस यू आर ब्रिंगिंग 2 tables डेटा टुगेदर, सो इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि वो 2 टेबल का डेटा का प्रोसेस करेगा, राइट? सो एसक्यूएल इज नॉट ओनली राइटिंग द क्वेरी, इट्स आल्सो राइटिंग द एडवांस, नॉट एडवांस, आई मीन आई विल से एफिशिएंट क्वेरी, राइट? जब आप कंपनीज में काम करते हैं तो वो कभी कभी ये भी देखते हैं कि आपने जो क्वेरी लिखी है वो कितनी एफिशिएंट है. तो अगर आपको डीप में ही जाना है, मतलब ये एक एडवांस स्टेज रहेगी. अगर आप एक एडवांस स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो, पहले आप बेसिक चीजें सीखिए कि क्या होता है, फिर आप लिखना सीखिए कि एसक्यूएल को लिखते कैसे हैं. देन यू कैन एक्सप्लोर कि हमने जो लिखा है वो व्हाट वुड बी द एफिशिएंट वे. आपने एक बेसिक क्वेरी लिखी है और उसका एफिशिएंट वे किया, तो वैसा कुछ करके सर्च कर सकते हैं. बेसिकली हर चीज एक सर्वर ही होती है. आई मीन कृतिका, एवरीथिंग इज अ सर्वर. आई मीन डेटाबेस भी एक सर्वर है. डेटाबेस, हम उसको डेटाबेस सर्वर ही बोलते हैं बेसिकली. Otherwise, like any machine where your code is working, right? Your backend code is working, your front-end code is working, your whatever code you have written, आपने Java में लिखा है, C++ में लिखा है, तो server is a machine. Your computer is also a server. You can make it a server. I mean, it's also act like a server. It's a machine. So database भी आप जिस पे रन करते हैं वो भी एक server है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला कि आप अपने लोकल मशीन में भी एक कोई आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे MySQL डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और देयर आर सो मेनी SQLite आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसको डाउनलोड करके आप वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, सो बेसिकली आपका वो सिस्टम भी एक सर्वर की तरह ही एक्ट करता है. तो डेटाबेस इटसेल्फ इज अ सर्वर, मतलब it acts like a server. Server is like a normal machine where your backend code is working. So अगर आप ideally I mean, इसका ये कोई सही क्वेश्चन नहीं है कि डेटाबेस और सर्वर में क्या डिफरेंस है. डेटाबेस भी एक सर्वर होता है, मतलब जिस आप एक डेटाबेस सर्वर जहाँ पे आप अपना डेटाबेस रखते हैं. तो डेटाबेस को अगर आप बताएं, नॉर्मल डेटाबेस है, नॉर्मल आपका जहाँ पे सारा डेटा एक जगह रखा है वो डेटाबेस है. और जिस सर्वर पे आप होस्ट कर रहे हो वो आपका डेटाबेस सर्वर है. तो सर्वर इज लाइक मशीन. सो इसका कोई डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और सर्वर, ऐसा कोई डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है. मे बी आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू ने किसी ने पूछा होगा आपसे कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी है नहीं कि सर्वर पे या मतलब सिस्टम लेवल पे कैसे चीजें वर्क करती हैं. नो, कंस्ट्रेंट एंड कीज आर नॉट सेम. सो बेसिकली की जो हमने डिस्कस की है, आपने देखा होगा हमने यूनिक की डिस्कस की है, प्राइमरी की डिस्कस की है और फॉरेन की डिस्कस की है, राइट? सो प्राइमरीली आई थिंक 3 ही कीज होती हैं, और भी होंगी, बट जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो प्राइमरी, फॉरेन की एंड द यूनिक की, राइट? और जो कंस्ट्रेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट आर डिफरेंट. कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट, की हमारा कोई फील्ड नॉट नल नहीं हो सकता है. डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट है कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो हम डिफॉल्ट क्या वैल्यू सेट करेंगे उसकी. तो कंस्ट्रेंट एंड कीज आर डिफरेंट. कंस्ट्रेंट इज लाइक कि आप किसी फील्ड पे जो डेटा आ रहा है, जो डेटा आप सेव कर रहे हैं, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि इस फील्ड का डेटा नल नहीं हो सकता, इस फील्ड का डेटा यूनिक होना चाहिए, लाइक दिस. कीज इज लाइक कि आप उस फील्ड को ही की बना दे रहे हो कि ये मेरी यूनिक की है, ये मेरी प्राइमरी की है, ये मेरी फॉरेन की है, और तीनों का अलग अलग यूज केस है. सो दीज आर डिफरेंट. तो अगर आप कंस्ट्रेंट अगर आप बोलते हैं तो कंस्ट्रेंट इज लाइक आपका डिफॉल्ट हो गया, राइट? आपका नॉट नल हो गया, लाइक दिस.
where we use non-relational database. Okay, Kritika. तो non-relational database we use when we don't have proper data. मतलब डेटा सही से नहीं है, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, डेटा इज ऑल मेसी. So for example, let's consider for example you are creating recommendation engine जहाँ पे यू आर यूजिंग डेटा एज यूजर के क्लिक. सो फॉर एग्जांपल यूजर ने किसी पेजेस पे क्लिक किया है, यूजर ने कुछ वीडियो देखा है, कुछ बटन्स क्लिक किया है, एंड यू नीड टू एनालाइज ऑल द डेटा एंड यू नीड टू लाइक फाइंड आउट समथिंग ऑन इट. तो वो जो डेटा है ना, वो डेटा सारा मेसी है. यू डोंट हैव प्रॉपर कॉलम वाइज डेटा कि हाँ इस कॉलम की वैल्यू ये है, इस कॉलम की वैल्यू ये है. आपका डेटा बहुत मेसी है. दैट टाइम यू हैव नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. तो उसमें क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में यू डोंट स्पेसिफाई कॉलम जैसे कि हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस में देते हैं या फिर कोई भी डीबीएमएस में देते हैं. यू जस्ट हैव अ जेसन. फॉर एग्जांपल डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जेसन होता है, पार्के होता है. सो दीज आर द फाइल फॉर्मेट जिसमें लेट्स टेक जेसन, जिसमें जेसन का डेटा है, उसमें की वैल्यू पेयर है. एंड इफ यू हैव लाइक सम वैल्यूज, even if you have some values और आपके पास कुछ डेटा नहीं है, you can put everything in a single JSON file. तो when you don't have proper data, that time we use non-relational databases. So for example, ऐसा भी हो सकता है कि in future और नए columns आए, तो जब भी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, सो इट्स वेरी हार्ड टू इनकॉर्पोरेट दोज कॉलम्स. बेसिकली वी कुड से अगर हमारे पास 50 नए कॉलम्स आ गए तो हमें हमारा डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, उसमें 50 कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे. अगर वो 50 कॉलम के रिलेशन प्राइमरी की फॉरेन की हम लोगों ने किसी और टेबल में दी है, देन अगेन वी नीड टू अपडेट ऑल दोज 50 कॉलम्स. तो इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन. तो इन दिस केस यूज नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे अपना डेटा मेसी है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज होने वाले हैं, जो इंक्रीज होने वाले हैं या फिर डिक्रीज होने वाले हैं. सो दीज आर फ्यू यूज केसेस वेयर यूज नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. एक एग्जांपल इसका ऐसा जैसे फेसबुक है. फेसबुक में जब आप लॉगिन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, राइट, सो फेसबुक आपको कई सारे फील्ड देता है. तो आप उस फील्ड में वैल्यूज रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, राइट. सो मे बी देर आर अराउंड 20 फील्ड्स. आपका नेम, आपका प्लेस, आपका कॉलेज, और देयर सो मेनी. आई थिंक 50 फील्ड्स आप उसमें ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें 10 फील्ड ऐड किए हुए हैं, किसी ने 20 किए हुए हैं, आपने 50 किए हुए हैं, राइट. अगर हम इसको रिलेशन डेटाबेस की तरह, एसक्यूएल डेटाबेस की तरह रखेंगे, तो हमें 50 कॉलम्स देने पड़ेंगे अपने डेटाबेस में. और होगा क्या, किसी ने 10 फिल कर रखे होंगे, किसी ने 20 फिल कर रखे होंगे, राइट. 50 तो किसी ने फिल नहीं किए होंगे. सो इन दैट केस यहाँ पे फेसबुक चाहे तो फेसबुक यूज भी करते हैं, विद नॉन रिलेशन डेटाबेस यूज कर सकते हैं कि की वैल्यू पेयर बन जाता है, नाम और बाकी सारा डेटा. जिसने 10 वैल्यू दी है उसका 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगा किसी एक जगह पे ही. तो उसमें मतलब कॉलम्स के हिसाब से नहीं करते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर नहीं होता है, जेसन रहता है एक तरीके से. आप इसको जेसन को मैप अगर आपने पढ़ा हो तो मैप में जो की वैल्यू पेयर होता है, की और वैल्यू में सारी चीजें आ जाती हैं. किसी ने 10 चीजें डाली हैं वो भी उसी वैल्यू में आ जाएगी, किसी ने 50 डाली है वो भी उसी में आ जाएगी. तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी स्पेस खराब नहीं होता है डेटाबेस का. तो वहां पे सीक्वल डेटाबेस या फिर रिलेशनल डेटाबेस का यूज नहीं है. तो वहां पे जो सिनेरियो है, जो एक्चुअल यूज केस है बिजनेस में, जो इफेक्टिव होगा, वो नो सीक्वल डेटाबेस होता है, जिसको नॉन रिलेशन डेटाबेस भी बोलते हैं. तो लाइक दिस, बेस्ड ऑन डेटा कि हम किस डेटा को मैनेज करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा डेटाबेस रखना है. जैसे बैंकिंग सिस्टम्स है, तो बैंकिंग में फिक्स होता है, आपको सब कुछ देना ही है. आपको उनका बैंक अकाउंट भी देना है, आपको उनका अपना अकाउंट नंबर, IFSC, आपका ट्रांजेक्शन, सब चीजें फिक्स होती हैं, राइट. तो आप उसको, बैंक का डेटा है टेबुलर फॉर्म में होता है नॉर्मली. तो बैंक जो है बहुत रिजिड होते हैं कि आपको ये फील्ड देने ही देने, एंट्री करनी करनी. तो नॉर्मली मैक्सिमम प्लेसेस में बैंक जो है रिलेशन डेटाबेस यूज करते हैं. थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस भी होता है कि रिलेशन डेटाबेस में सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है. सो दैट्स हाउ, बेस्ड ऑन द यूज केस कि हमारे पास किस तरह का डेटा है और हमें उसको कैसे मैनेज करना है, तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है. राइट. आपने नाम सुने होंगे शायद, मोंगोडीबी, कसांड्रा डीबी. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के. So yeah, good luck for your interview if you are giving your next interview for SQL and database related questions. So that's all from me.